حق نے عطا دو فرزند، اس طرف حضرت زینب کو دیے دو دل بند، نہ اچھے ہوں یہ زہرا کے جگر کے پیوند، سب کے ماموں کے ہوئے ماں کا کیا نام بلند، کون میدان میں ایسو کے بھلا غالب ہو، جن کا نانا سا علی ابن ابی طالب ہو۔ زینب نے کہا مجھ کو ہزاروں غم ہیں، دشمن ہیں بہت بھائی کے یاور کم ہیں، کیا صدقے کروں بھائی کے جو رد و بلا، تب کون محمد کی پکارے ہم ہیں۔ شور ہے رن کے جعفر کے کمر آتے ہیں، معدن آل پیمبر کے بہر آتے ہیں، دشت میں گلشن حیدر کے ثمر آتے ہیں، دختر فاطمہ زہرا کے فطر آتے ہیں، ترک تیغوں کو علم شان سے آئے دونوں، یا علی کہتے ہوئے فوجوں کے چھائے دونوں۔ نظم زخموں سے جو زینب کے فطر چور ہوئے، خون سے ان دونوں کے تر عارض پر نور ہوئے، ہاتھ جب کٹ کے گرے رہنے کے معذور ہوئے، سرکٹانی ہی پھر ان دونوں کو منظور ہوئے، گھوڑوں کی پیٹھ پر آخر جو کش آیا ان کو، نیزوں کی نوک سے آتا نے گرایا ان کو۔ تو محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ حضرت مسلم کے دو بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے تھے، ان کی حدیث میں ان کے اشعار دونوں یتیم حضرت مسلم تھے کیا اکیل، حاضر تھے با ادب ادب سرور جلیل، آپس میں کہتے تھے کہ پدر تو ہوئے قتیل، ہم کوفیوں کو مارے مرے ہیں کو قلیل، گھر سے طلب کیا تھا اسی اعتقاد پر، لعنت خدا کی مذہب ابن زیاد پر، نکلے وگا کو ایل چیے شاہ کے پسر، ماتم میں تھے کہ تھا ابھی تازہ غم پدر، فوجوں پہ حملہ ور ہوئے جس دم و شیر نر، دم میں تنوں سے کٹ کے گرے کوفیوں کے سر، تن پر چڑھے تو قوم کے کپڑے اتار کر، مارے گئے وہ شیر ہزاروں کو مار کر۔ محمد والے محمد صلی اللہ محمد والے محمد۔ اے قبر میرے چاند کو لوری کی سنانا، اے قبر میرے چاند کو لوری کی سنانا، میری طرح میرے لال کو گودی میں سلانا، ارے پیاسا ہے میرا لال نہ خود مانگ سکے گا، پیاسا ہے میرا لال نہ خود مانگ سکے گا، مل جائے جو پانی اسے جی بھر کے پلانا، ہے جھولے میں سے پہلے سلاتی تھی ہمیشہ، ارے جھولے میں سے پہلے سلاتی تھی ہمیشہ، جھولا یہاں ملتا نہیں اصغر کو بتانا، اصغر کو بتانا۔
محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد صلوات محمد والے محمد ابن صاحب کی یہ کوثر نہ ہوتا علیہ کربلا کا اثر نہ ہوتا نہ ہوتی شہ کی تکمیل شہادت شہید ہاتھوں پہ در اثر نہ ہوتا 71 سر نہ کرتے شاہ قربان تو موقن دین پیغمبر نہ ہوتا نہ ملتی دین حق معراج تجھ کو اگر موقع سنا پر سر نہ ہوتا 72 کربلا میں ایک گتے بلند اسلام کے دن پر نہ ہوتا نہ ثابت ہوتا اعجاز امامت اگر نظر گویا سر نہ ہوتا نشے لاشے جمع خیمے میں لاتے دل پر صبر کا پتھر نہ ہوتا مسلمہ شے کو اگر پہچان لیتے تو رایا خون پیغمبر نہ ہوتا یقیناً کس یہ دل دوست جاتی اگر شبیر سا رہبر نہ بے ہوتا شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ محمد والے محمد بآواز بلند نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام مولا الكونين جد الحسنين بالقاسم محمد منزله كعب قوسين أو أدنى سدرة المنتهى مقامه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا صلوات محترم سامعین کرام بزرگان عزیز دوستان عزیز مادمداران سرکار سیدی فردا جیسا کہ مسلسل قرآن اور اہل بیت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور کل میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے جناب آدم کو بنایا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو. اسی سے گفتگو کو مسلسل کرتا ہوں. صلوات پڑھیں محمد والے جب اللہ نے آدم کو بنا لیا اور فرشتوں نے سجدہ کر لیا, ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. حالانکہ اس نے بہت سارے سجدے کیے تھے, اتنا سجدہ کیا کہ اللہ نے اسے بزم ملائکہ میں بلا لیا. اب یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے کہ جہاں ابلیس نے اتنا سجدہ کیا تھا
वहां एक सजदा और कर लेता, उसका क्या चला जाता? करोड़ों सजदा किया उसने, एक आदम को अगर सजदा कर लेता तो फिर ना इब्लीस होता ना कोई बशर बहकता। एक सजदा सिर्फ अगर कर लेता तो फिर इब्लीस होता ही नहीं, और फिर कोई सजदा कर लेता वो भी सजदा माबूदी नहीं था। अल्लाह ने ये नहीं कहा था कि तुम आदम को सजदा करो। सजदा माबूदी अलग है, सजदा ताजीमी अलग है। जो हम सजदा करते हैं नमाज में वो सजदा माबूदी है, और जो जरी के सामने या आइम्मा की कब्रों के सामने सजदा कोई करता है या चूमता है या पेशानी को दीवार पर मस करता है तो उसे सजदा ताजीमी कहा जाता है। सजदा ताजीमी शिर्क और बिदअत नहीं है। अल्लाह के लिए हम सजदा करते हैं, या इसे ये भी कहा जा सकता है कि हम अल्लाह ही के लिए सजदा करते हैं और सजदा शुक्र करते हैं। लेकिन सजदा हम किसी गैर मखलूक को नहीं करते, मतलब गैरुल्लाह को नहीं करते। जब भी करते हैं अल्लाह ही को करते हैं। अल्लाह ने कहा कि जो आदम को सजदा करना है वो सजदा ताबुदी नहीं है, माबूदी नहीं है, वो सजदा ताजीमी है। उसने कहा मैं सजदा ताजीमी नहीं करूंगा, तेरा सजदा मैंने कर लिया लेकिन सजदा ताजीमी नहीं करूंगा। अल्लाह ने पहले ही दिन अपने नबी के आगे सर झुका के बता दिया कि देखो जो मेरा बनाया हुआ नबी होगा उसकी ताजीम तुम पर वाजिब है। वो तुम्हारे जैसा नहीं होगा, वो तुम्हारे जैसा नहीं होगा, उसका एहतराम वाजिब है, उसके आगे सजदा ताजीमी करना पड़ेगा। लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। यानी अब नतीजा ये हुआ जो भी नबी का या वली खुदा का ताजीम का इनकार करे, उनके ताजीमी सजदे का इनकार करे तो फिर इब्लीस की सिफत वाला होगा। तकब्बुर किया। तकब्बुर का मायने जो है यानी किब्रियत, अकबर से बना है तकब्बुर। आप कहते हैं ना अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, यानी हर मखलूक से, यानी उसके बराबर में अल्लाह के मुकाबले शान तकाबुल कोई चीज हो ही नहीं सकती। कि हम अगर ये कहें कि अल्लाह इस चीज से बड़ा है, अल्लाह उस चीज से बड़ा है, तो शान किब्रियाई की तौहीन होगी कि हम अल्लाह को किसी मखलूक से मिलाएं कि अल्लाह इस चीज से बड़ा है। अल्लाह अकबर यानी अल्लाह जितना बुलंद आप सोच सकते हैं उतना बुलंद है, किसी शय से, किसी चीज से बड़ा नहीं है, बल्कि वो अकबर है, वो सबसे बुलंद है। और तकब्बुर उसी से आता है, यानी कोई अल्लाह को गवारा नहीं है कि कोई अपने आप को बुलंद समझे। इसलिए कि ये जो किब्रिया होना ये अल्लाह ही के ऊपर ज़ेब देता है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। तकब्बुर यानी अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को ऊंचा समझना। शैतान ने तकब्बुर किया और उसे निकाल दिया गया बज़्म इलाही से, बज़्म मलाइका से भी निकाल दिया गया। अच्छा, जब शैतान निकाला जा रहा था तो उस वक्त शैतान ने कहा मालिक तेरी मैंने बड़ी इबादतें की, बड़ा सजदा किया है, उसके बदले में तू मुझे कुछ देगा या नहीं? अल जज़ाउल एहसान इल्ला एहसान, एहसान का बदला एहसान होता है। हालांकि मैंने एक सजदा नहीं किया जबकि करोड़ों सजदा मैंने किया है। सिर्फ आदम को ही सजदा नहीं किया, तेरी बारगाह में करोड़ों सजदा किया है, उसका कोई सिला तू मुझे देगा? हालांकि तू निकाल रहा है निकाल दे, लेकिन कोई सिला तो दे। अल्लाह ने कहा इब्लीस क्या चाहता है? कहा तू मुझे वक्त मालूमा तक की मोहलत दे दे ताकि मैं तेरे मुखलिस बंदों को बहकाऊं। अल्लाह ने कहा ठीक है, दे दिया। फिर उसके बाद उसने कहा कि तू मुझे इतनी मोहलत दे कि मैं उसे आगे से भी बहका सकूं, पीछे से भी बहका सकूं, दाएं से भी बहका सकूं, बाएं से भी बहका सकूं। अब इधर जैसे ही इब्लीस ने कहा मुझे मोहलत दे दे कि मैं आगे से भी बहका सकूं, अल्लाह ने कहा दे दिया। फिर इब्लीस ने कहा मुझे मोहलत दे दे मैं पीछे से भी बहका सकूं, अल्लाह ने कहा दे दिया। फिर इब्लीस ने कहा मुझे मोहलत दे दे मैं दाएं से भी बहका सकूं, अल्लाह ने कहा दे दिया।
اگر میرے جیسا طالب علم ہوتا دست ادب جوڑ کے بارگاہ الہی میں عرض کرتا مالک ٹھیک ہے تو علی کل شیء قدیر ہے، تیری قدرت ہر شے پر ہے، تیرے حکم میں کوئی نقطہ چینی نہیں کر سکتا، لیکن تو جب سارا اختیار ابلیس کو دے رہا ہے، اب اگر بندہ بہک جا رہا ہے تو اس میں اس کی کیا غلطی؟ سارا اختیار وہ مانگے جا رہا ہے، آپ دیے جا رہے ہیں، آپ دیے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا آگے سے بہکاؤں گا، اللہ نے کہا بہکا لے، کہا پیچھے سے بہکاؤں گا، اللہ نے کہا بہکا لے، کہا دائیں سے بہکاؤں گا، اللہ نے کہا اختیار دیا، کہا بائیں سے بہکاؤں گا، اللہ نے کہا اختیار دیا۔ میں کہوں گا پالنے والے تو نے اتنا اختیار دے دیا، یہاں تک کہ اللہ نے ابلیس کو اختیار دے دیا کہ ابلیس نے کہا کہ میں لوگوں کے مال میں اور ان کے اولاد میں بھی شریک ہو جاؤں گا۔ اللہ نے کہا چل تجھے یہ بھی اختیار دے دیا، تو ان کے مال میں بھی اور اولاد میں بھی شریک ہو جانا۔ میں کہوں گا پالنے والے تو دیتا چلا جا رہا ہے، ذرا سا تو رک جا، اب آواز قدرت آئے گی، تمہیں معلوم نہیں، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے کہا مالک میں نے یہ سمجھا جب وہ آگے سے بھی بہکا رہا ہے، پیچھے سے بھی بہکا رہا ہے، دائیں سے بھی بائیں سے بھی، اور پورا اختیار تو اسے دے رہا ہے، تو پھر ہم تو بہک ہی جائیں گے۔ تو آواز قدرت آئی تمہیں معلوم نہیں، تم یہ سمجھتے ہو جہتیں چار ہوتی ہیں، سمتیں چار ہوتی ہیں۔ میں کہا ہاں مالک میں سمجھتا ہوں سمت چار ہوتی ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں۔ آواز قدرت آئی نہیں، اوپر نیچے بھی ہوتا ہے۔ جہتیں چار نہیں ہیں، سمتیں چار نہیں ہیں، سمتیں 6 ہیں۔ اب میں نے ابلیس کو 4 سمتوں میں اختیار دے دیا، لیکن 2 سمتوں میں تمہیں اختیار دیا ہے۔ جب بہکنے لگنا تو زمین کی طرف سجدہ کر لینا، میں تمہیں بہکا دوں گا اور جب میں تمہیں بچا لوں گا، اور جب تم بہکنے لگنا تو دستے دعا بلند کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لینا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد یعنی 2 سمت اللہ نے اپنے بندوں کے حوالے رکھا اور 4 سمت ابلیس کے حوالے کر دیا۔ کہا کہ جب تمہیں خوف لاحق ہو تو سجدہ کر لینا، میں تمہیں بچا لوں گا، اور جب تمہیں خوف لاحق ہو تو رخ بلند کر کے دست دعا بلند کر دینا، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اچھا اب اسے اللہ نے وقت معلومہ تک کی مہلت دے دی، الی یوم الوقت المعلومہ، وقت معلومہ تک یعنی قیامت تک کی مہلت شیطان کو اللہ نے دے دی۔ ایک روز نبی تشریف فرما تھے، صلوات پڑھیں محمد والا، کہ ایک شخص آیا ضعیف تھا، نبی کے پاس آیا اور نبی سے گفتگو کی، چلا گیا۔ ابھی کچھ دور آگے ہی بڑھا تھا، مولا علی وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ نبی نے مولا علی سے فرمایا علی کیا تم نے پہچانا کہ یہ آنے والا کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ تو نبی نے مسکرا کے کہا یہ ابلیس تھا، یہ ابلیس تھا جو میرے پاس آیا تھا۔ جیسے ہی مولا علی نے سنا فوراً ذوالفقار اٹھائی اور اس کے تعاقب میں گئے، اسے پکڑا، اس کی گردن پر ذوالفقار رکھی۔ ابھی ذوالفقار چلانے ہی والے تھے کہ حضرت نے روک لیا، علی ایسا مت کرو، اسے وقت معلومہ تک کی مہلت ہے، اسے وقت معلومہ تک کی مہلت ہے۔ میں کہوں گا اگر مولا علی کی ذوالفقار چل جاتی تو شیطان کا کام تمام ہو جاتا اور پھر ہر انسان آزاد ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد والے طرف امن و سکون ہوتا، کوئی بہکتا ہی نہیں، اس لیے کہ ساری جڑ شیطان ہے۔ جبکہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے تاریخ میں کہ شیطان نے انہیں دیکھ کر کہا کہ تم خواہ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، یہ تو ہمارے بھی استاد ہیں۔ پڑھے محمد والے محمد۔ تو اللہ نے سارا اختیار شیطان کو دے دیا اور اس کے بعد اسے نکال دیا، اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ اب یہ جناب آدم سے بدلہ چاہتا تھا کہ اب میں کسی طرح سے آدم کو بہکاؤں گا، میں جب نکال دیا گیا تو اب آدم کو بھی نکلنا ہوگا۔ اب یہ آدم کے چکر میں تھا۔ اب کیا کیا اس نے کہ جناب آدم کو جب اللہ نے حکم دے دیا کہ تم اور تمہاری زوجہ جنت میں چلی جائے اور اس باغ میں
जो दिल कहे खा ले, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। लेकिन देखो इस दरख्त के करीब न जाना तुम दोनों, वरना जालिमीन में से हो जाओगे। इससे कहा आदम से और हव्वा से, अल्लाह ने कहा वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत तकरारी आयत है, कुरान में कई मरतबा आई है, सूरह बकरा में भी आई, सूरह स्वाद में भी आई, और बहुत सारे मकामात पर ये आयत आई, वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ऐ आदम और हव्वा इस दरख्त के करीब न जाना वरना तुम दोनों जालिमीन में से हो जाओगे, जालिमीन में से हो जाओगे। अब बताइए कि जनाब आदम दरख्त के करीब गए या नहीं गए? अगर गए तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह जालिमीन में से, और अगर नहीं गए तो दरख्त के फल को खाया कैसे? अब पता कैसे चलेगा कि जनाब आदम को जालिमीन में से बचाना है? इसलिए कि मासूम होते हैं अंबिया, जितने भी अंबिया हैं वो मासूम हैं। अब कुरान ये कह रहा है वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। देखो इस दरख्त के करीब न जाना, लेकिन तुम दोनों जालिमीन में से हो जाओगे अगर चले गए तो। अब शैतान ने किया क्या? मोर का और सांप का सहारा लेकर जनाब आदम को बहकाना चाहा, लेकिन जनाब आदम नहीं बहके। फिर हव्वा के पास आए, हव्वा को बहकाया, हव्वा की बात समझ में आ गई। शैतान ने कहा कि मालूम है तुम्हें अल्लाह ने क्यों मना किया इस दरख्त के करीब जाने के लिए? इसलिए कि अगर तुम इसके करीब गई और इसके फल को खा लिया तो वो आलीन में से हो जाओगी, जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि अम कुंता मिनल आलीन, क्या तुम उन बड़े लोगों में से हो गए, यानी पंजतन में से हो जाओगे और हमेशा के हमेशा यहीं पे रहोगी जन्नत में। औरत की समझ में आ गया। बहुत से लोग औरतों के चक्कर में ज्यादा गुमराह हो जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। कहा जाता है कि बनी इसराइल में एक आबिद था, उसने इबादत किया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। नारा हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलवात। तो इब्लीस ने आकर हव्वा को बहकाने की कोशिश की। कुरान ने कहा वला तक़रबा हाज़िही शजरत फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अगर इस दरख्त के करीब गए आदम और हव्वा तुम दोनों तो जालिमीन में से हो जाओगे, जालिमीन में से हो जाओगे अगर गए। तो इब्लीस ने आदम के ऊपर सोचा कि ये बहक जाएंगे, लेकिन जनाब आदम नहीं बहके। वो आया हव्वा के पास, हव्वा उसकी बात में, इब्लीस की बात में आ गई। मैं अर्ज कर रहा था कि औरतों के चक्कर में बहुत से काम बिगड़ जाते हैं। एक आबिद था बनी इसराइल का और बड़ा इबादत गुजार था, इबादत करके पलटा। अल्लाह ने उसे 3 दुआओं के लिए कहा कि तुम 3 दुआ तुम्हारी कबूल हो जाएगी, और तुम 3 दुआ के लिए मुस्तजाबु दावा बन गए। अगर तुम 3 दुआ करोगे, जो भी दुआ करोगे वो मैं तुम्हारी दुआ को मेरी तरफ मुतवज्जे रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद। 3 दुआएं कबूल हो जाएंगी, तुम जो भी 3 दुआ करोगे वो कबूल हो जाएगी। अब ये पलट के आया खुशी खुशी, इस साल इबादत किया था और उसके बदले में इसे 3 मुस्तजाबु दावा का ये लक़ब मिल गया। अब ये पलटा आया और आकर सबसे पहले अपनी ज़ौजा को बताया, पता है आज अल्लाह ने हमें कहा है कि तुम्हारी 3 दुआ कबूल हो जाएगी। तो ज़ौजा ने सबसे पहले अपने बारे में सोचा, ठीक है अच्छा एक दुआ हमारे लिए कर दीजिए, हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो जाएं, हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो जाएं। अब उसने आबिद ने दस्त दुआ बुलंद की और दुआ कर दिया। अब वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो गई, सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो गई। अब आलम ये हुआ कि जैसे ही वो बाहर निकले तो हुजूम है, घर के बाहर भी हुजूम है। अब ये ज़ौजा, ये बेचारा आ रहा है काम पर से, लेकिन इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं है, इसलिए कि अब ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो गई। घर के बाहर भी जहाँ भी जा रही है एक तरफ से हुजूम है। अब जब शौहर ने सोचा कि मैंने ही इसे खूबसूरत बनाया और ये मेरा ही ख्याल नहीं रखती, लिहाजा गुस्से में आकर बद्दुआ कर दी कि पालने वाले इसे बदसूरत कर दे।
अब वो बदसूरत हो गई, कितनी दुआ खत्म हो गई? 2, बची 1। अब वो बदसूरत हो गई, अब कोई उसके करीब नहीं जा रहा है, और उसके बाद यहाँ तक कि उसका बेटा भी उसके करीब नहीं जा रहा है, इतनी खौफजदा और बदसूरत हो गई। तो बेटे ने आकर अपने बाप से कहा कि बाबा जान, ये हालत मेरी माँ की मुझसे देखी नहीं जाती, लिहाजा आप उन्हें पहले जैसा कर दीजिए। अब उसने दस्ते दुआ बुलंद किया, कहा कि जैसे ये थी वैसे ही हो जाए। फिर वो जैसी थी वैसे ही हो गई, और 3 दुआ इसकी एक औरत के चक्कर में रहेगा हो गई। सलवात पढ़े मोहम्मद। अब यहाँ पर इब्लीस ने हव्वा को बहका दिया, जबकि हुक्म दोनों को था, आदम को भी था, हव्वा को भी था। वला तकरबा, तकरबा बे के साथ अलिफ, ये तस्निया का सेगा है, 2 लोगों के लिए आता है, 2 लोगों के लिए आता है। तकरबू होता तो 3 या 3 से ज्यादा होता। वला तकरबा, तुम दोनों, आदम और हव्वा, तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना। लेकिन जनाबे हव्वा चली गई, आदम दरख्त के करीब नहीं गए, इसलिए कि कुरान ने कहा था वला तकरबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। करीब जाने के लिए मना किया था अल्लाह ने। हव्वा चली गई, हव्वा ने उस दरख्त के फल को तोड़ा, और तोड़ने के बाद लाकर आदम को दिया। जनाबे आदम ने पहले इनकार किया, लेकिन जब हव्वा का इसरार हुआ तो फिर हव्वा ने ये कहा, पहले ही से इसके ऊपर शैतान सवार था, हव्वा ने कहा कि अल्लाह ने करीब जाने के लिए मना किया था, खाने के लिए थोड़ी मना किया था। अब मैं जबकि तोड़ के ले आई हूँ, आप खा लीजिए, और अगर आप खा लीजिएगा तो आलीन में से हो जाइएगा, बड़े लोगों में से हो जाइएगा, या आप हमेशा जिंदा रहेंगे, आपको बड़ा ओहदा मिल जाएगा। जनाबे आदम ने खा लिया। जैसे ही उस दरख्त के फल को खाया, अल्लाह ने कहा कि तुम सब के सब यहाँ से निकल जाओ। तुम सब के सब, यानी मोर, सांप, इब्लीस और आदम, हव्वा, सबको जन्नत से निकाल दिया। यहाँ पर जनाबे आदम से गुनाह नहीं हुआ, जनाबे आदम से तर्क औला हुआ। और फिर मासूमीन ने फरमाया, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब लोगों ने आकर अइम्मा से सवाल किया, इमाम से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि कुरान ने कहा वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, आदम और हव्वा तुम दोनों दरख्त के करीब नहीं जाना वरना जालिमीन में से हो जाओगे। सवाल करने वाले ने सवाल किया, हालांकि हव्वा चली गई, और क्या माज़ल्ला हव्वा जालिमीन में से हो गई? तो फिर इमाम ने फरमाया कि देखो, जुल्म 2 तरह का होता है, एक दूसरे के ऊपर जुल्म होता है, एक अपने ऊपर जुल्म होता है। हव्वा ने जो किया है वो दूसरे के ऊपर जुल्म नहीं किया, अपने ऊपर जुल्म किया है, लिहाजा इसमें अपने ऊपर जुल्म करने में सजा कम है। लिहाजा ये तर्क औला, जनाबे आदम से और हव्वा से तर्क औला हुआ, यानी औला को तर्क किया। तर्क औला यानी औला को तर्क करना, जो काम नहीं करना था उन्होंने ऐसा कर दिया। नहीं खाना था लेकिन खा लिया, जाने के लिए अल्लाह ने मना किया था, खाने के लिए मना नहीं किया था। हालांकि आदम ने खा लिया, तर्क औला हुआ, आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। अब मैं जुमला नजर करने जा रहा हूँ, जैसे चाहे सुन लीजिएगा। आदम से तर्क औला हुआ, लिहाजा आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। तो भैया जब तर्क औला वाला जन्नत में नहीं रह सकता तो तर्क मौला वाला कैसे कहा कि तुम सब के सब निकल जाओ यहाँ से। और जनाबे आदम को, हव्वा को, सबको निकाल दिया गया। ये जनाबे आदम से तर्क औला हुआ था, इसे नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्होंने किया। खैर ये कोई इस्मत पे हर्फ नहीं आएगा, इसलिए कि औला को तर्क किया। अब इसकी सजा जनाबे आदम को जो मिली वो ये कि आदम और हव्वा को जब उतारा गया तो जनाबे हव्वा को जद्दा में उतारा गया, सऊदी में, और जनाबे आदम को सरमदीप में, जो पहले हिंदुस्तान का जुज़ था, यहाँ पर उतारा गया। अब ये दोनों एक दूसरे से जुदा रहे
اور गिरिया करते रहे। आदम इतना गिरिया किए कि परिंदे भी आदम के साथ रोने लगे, परिंदे भी आदम के साथ रोने लगे और तमाम मखलूकात रोने लगी। ये आदम पहले बशर हैं जो ज़मीन पर आए हैं, हर तरफ सन्नाटा है, कोई नहीं है, सिर्फ आदम, सब रोने लगे। तो फिर जिब्राइल आए, आवाज़ दी, आदम जो तुमने तरक़ औला किया है इससे अल्लाह से तौबा करो और अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। आदम ने कहा कि मैं तौबा कैसे करूं? तो फिर जनाब जिब्राइल ने बताया, असल में अल्लाह ने भेजा था। फिर जनाब जिब्राइल ने कहा, कुरान ने कहा फतलक्का आदमा रब्बहू कलिमातिन फताबा अलैहि इन्नहु हुवा तव्वाबुर रहीम, कि अल्लाह ने जिब्राइल के ज़रिए आदम के पास कहा कि जाकर तुम कलिमात के ज़रिए से तौबा करो। मैंने इससे पहले कल की मजलिस में कहा था जनाब इब्राहिम की आजमाइश हुई कलिमात के ज़रिए से, और वही कलिमात मैंने अर्ज़ किया था कि कलिमात से मुराद आले मोहम्मद थे। यहाँ पर जिब्राइल ने आकर आदम से कहा कि इन कलिमात के वास्ते से तुम दुआ करो, फतलक्का आदमा रब्बहू कलिमातिन फताबा अलैहि, अगर तुम इन कलिमात को वास्ता बनाओगे तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। अब सब ने लिखा इस आयत की तफसीर में, सब ने ज़मख़शरी से लेकर बड़े बड़े अहले सुन्नत के तफसीर निगार सब ने लिखा। और रिवायत किससे किया? खलीफा दोवम से, कि खलीफा दोवम ने कहा कि मैं नबी के पास बैठा हुआ था कि नबी ने फरमाया कि ऐ लोगों जान लो कि जिनके वास्ते से आदम की तौबा कबूल हुई थी वो कलिमात कोई और नहीं, हम आले मोहम्मद हैं। यानी आदम ने आले मोहम्मद का वास्ता देकर दुआ की, कलिमात का वास्ता देकर दुआ की, तो जनाब आदम की दुआ कबूल हो गई। और फिर जनाब आदम की दुआ जब कबूल हो गई तो जनाब आदम हवा से आकर मिल गए और अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया। अब सुनिए कि ये आले मोहम्मद वास्ता बनाए जाते हैं। एक शख्स आया आन के कहा कि या नबी अल्लाह मेरे लिए दुआ कर दीजिए, बहुत परेशान हूँ। नबी ने अली का वास्ता देकर दुआ की और उसके बाद उसकी दुआ कबूल हो गई और उसकी परेशानी रफा हो गई। फिर दूसरे दिन आया, फिर अली के पास आया, पहले नबी के पास आया था, फिर अली के पास आया। अली के पास आन के कहा कि मौला परेशान हूँ, मेरे लिए दुआ कर दीजिए। मौला अली ने दस्ते दुआ बुलंद किया और वास्ता दिया। जब नबी के पास आया था तो मौला अली का वास्ता नबी ने दिया था, और जब अली के पास आया तो अली ने हजरत का वास्ता दिया। अब वो मुताज्जिब हो गया, ताज्जुब करने लगा। नबी के पास आन के कहा कि जब मैं आपके पास आया आपने अली का वास्ता दिया, जब मैं अली के पास गया अली ने आपका वास्ता दिया। ये फलसफा समझ में नहीं आता। एक मर्तबा मोहम्मद ने मुस्कुरा के फरमाया तू इम्तिहान लेने आया था, अरे हम में से कोई भी पंजतन में से किसी का भी वास्ता दे देगा तो अल्लाह उस वास्ते को कबूल कर लेगा। एक मर्तबा एक शख्स आया, दूसरी रिवायत, एक शख्स आया आन कर उसने कहा कि या नबी अल्लाह मुझे हक दिखा दीजिए, मुझे हक दिखा दीजिए। तो नबी ने इशारा किया कि उस हुजरे की तरफ चले जाओ, तुम्हें हक दिख जाएगा। मस्जिद के गोशे की तरफ, हुजरे की तरफ इशारा किया, कहा कि वहाँ चले जाओ तुम्हें हक दिख जाएगा। जब वो बशर वहाँ गया तो उसने क्या देखा, अली दस्ते दुआ बुलंद करके दुआ कर रहे हैं और उसमें वास्ता मोहम्मद का दे रहे हैं, अपने लिए दुआ कर रहे हैं, दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं, वास्ता मोहम्मद का दे रहे हैं। वो करीब आया, अभी हक देखने के लिए आया था, हालांकि हक देख लिया, उसके बाद और ताज्जुब करने लगा। आया नबी के पास आन के कहा मैंने हक तो देख लिया, उस पर ताज्जुब नहीं हुआ, ताज्जुब इस पर हुआ कि अली आपको वास्ता बना रहे थे। इससे पहले कि ये अपनी बात कहता नबी ने दस्ते दुआ बुलंद करके कहा पालने वाले मेरी मुश्किलों को आसान कर दे अली के वास्ते से। बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, तुम ताज्जुब न करो इसलिए कि हम आले मोहम्मद हैं, हमारा कोई भी किसी का भी वास्ता कोई दे देगा
तो वो दुआ कबूल हो जाएगी। ये वास्ता जनाबे आदम ने बनाया था, सबसे पहले वसीला जनाबे आदम ने बनाया था। जो लोग ये कहते हैं कि वास्ता बनाना सही नहीं है, बिदअत है, शिर्क है और वसीला नहीं बनाना चाहिए, सबसे पहले वसीला जनाबे आदम ने बनाया था। अगर वसीला बनाना माज़अल्लाह शिर्क है तो जनाबे आदम के लिए क्या कहोगे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। ये जितने भी अंबिया आए हिदायत देने के लिए आए, ये सब के सब हादी थे, ये सब के सब रहनुमा थे, ये सब के सब रहबर थे। जितने भी अंबिया आए वो इसलिए आए ताकि आखिरी नबी के बारे में बता सके। आखिरी नबी के लिए सब ज़मीना फराहम करने आए। आदम आए, उन्होंने कहा आखिरी ज़माने में एक नबी आएगा और उसके ये सिफात हैं। नूह आए, उन्होंने बताया कि आखिरी ज़माने में एक नबी आएगा, उसके ये सिफात हैं। यहाँ तक कि तमाम अंबिया आए नबी की नबूवत का ऐलान करने के लिए। जनाबे ईसा आए, उन्होंने कहा कि आखिरी ज़माने में, जो ईसाइयों के यहाँ भी ये नाम मौजूद है, कि आखिरी ज़माने में एक बशर आएगा, एक अल्लाह का भेजा हुआ बंदा आएगा जो इस दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा और उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम अहमद होगा। जनाबे ईसा ने भी बशारत दी। यानी आदम इसलिए आए ताकि नबी की नबूवत का ऐलान कर सके, नूह इसलिए आए ताकि नबी की नबूवत का ऐलान कर सके, इब्राहिम इसलिए आए ताकि नबी की नबूवत का ऐलान कर सके, ईसा इसलिए आए ताकि नबी की नबूवत का ऐलान कर सके। यानी तमाम अंबिया इसलिए आए ताकि नबी की नबूवत का ऐलान कर सके। अब मोहम्मद से पूछिए आपको क्यों भेजा गया, तो मोहम्मद गदीर के मैदान में कहेंगे तमाम अंबिया इसलिए आए ताकि मेरी नबूवत का ऐलान करे। मुझे अल्लाह ने इसलिए मबूस किया ताकि मैं अली की इमामत का ऐलान करूं। नारा हैदरी, आवाज़े बुलंद, नारे सलवात। नबी की नबूवत का ऐलान करें, लेकिन आखिरी नबी इसलिए मबूस किए गए, भेजे गए, इरसाल किए गए ताकि अली की विलायत और इमामत का ऐलान कर सके। अब उससे पढ़कर अब आप देखें कि शम्स तबरेज ने क्या कहा। शम्स तबरेज ये कहते हैं, ये शम्स तबरेज शायर नहीं, वो मौलाना रूम के दौर के शम्स, कि जब मौलाना रूम दर्स दे रहे थे, मौलाना रूम फलसफा पढ़ा रहे थे, मंतिक पढ़ा रहे थे, लॉजिक पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर शम्स तबरेज आए। आलम ये इनका था कि कपड़े फटे हुए थे, अजीब हाल था। करीब गए, कहा कि मौलाना रूम से कि ये तुम पढ़ा रहे हो ये क्या है? मौलाना रूम ने कहा कि तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये फलसफा है, लॉजिक है, मंतिक है, ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इन आनस के तू नमीदानी का ये वो है जो तुम नहीं जानते, तुम्हारे पल्ले ये बातें नहीं पड़ेंगी। अब उन्होंने क्या किया, जनाब शम्स तबरेज ने वहीं पे जो किताब से वो पढ़ा रहे थे उसे उठाया, वहीं पे हौस था उसमें फेंक दिया। जैसे ही हौस में वो किताब गई, मौलाना रूम चीख कर उठे, आवाज दी, ये तुमने क्या कर दिया? अरे मेरी बरसों की मेहनत थी, तुमने पानी में फेंक दिया, अब तो खराब हो गई होगी। जैसे ही शम्स तबरेज ने देखा कि मौलाना रूम गुस्से में है, उन्होंने हौज में या अली कह के हाथ डाला, किताब को निकाला। तारीख के जुमले हैं कि उमूमन जब पानी से कोई चीज उठाई जाती है तो उससे कतरे गिरते हैं, पानी के कतरे गिरते हैं। लेकिन जैसे ही शम्स तबरेज ने किताब निकाली हौज में से और उस पर हाथ मारा किताब पर, तो वहां पर धूल उड़ रही थी, गर्द उड़ रही थी। अब मौलाना रूम ने शम्स तबरेज से कहा, इन चीयर्स, ये क्या है? जो मौलाना रूम ने कहा था वही जुमला दोहरा दिया शम्स तबरेज ने, कहा इन आनस कि तू नमीदानी, कहा ये वो है जो तुम्हें नहीं समझ में आया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले ये वो है जो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। अब इन्होंने शागिर्दों से कहा, जाओ तुम खुद ही पढ़ो लिखो, छुट्टी
किताब को बंद किया, शम्स तबरेज के पीछे चलने लगे और शम्स तबरेज से कहा आप हमें अपना मुरीद बना लीजिए। शम्स तबरेज ने कहा ठीक है मेरे पीछे पीछे चलो, लेकिन जो मैं कहूँगा वही आपको कहना है। उन्होंने कहा ठीक है। शम्स तबरेज आगे बढ़े, उन्होंने कहा देखो मैं या अली कह रहा हूँ, आप मेरे पीछे या शम्स कह के पानी पे कदम रखिएगा। अब इन्होंने जैसे ही शम्स तबरेज ने या अली कहा और पानी पे वो चलने लगी, मौलाना रोम ने भी या शम्स कहा और पानी पे चलने लगे। कुछ दूर आगे बढ़े थे, वसत दरिया में थे कि शम्स तबरेज की बात को लेकर मौलाना रोम ने सोचा कि जब ये डायरेक्ट या अली कह रहे हैं तो मैं भी या अली कह लूं, जैसे ये चल सकते हैं तो मैं भी चल लूंगा। अब इन्होंने जैसे ही या अली कहा डूबने लगे, जैसे ही या अली कहा डूबने लगे। एक मर्तबा शम्स तबरेज ने मौलाना रोम का हाथ पकड़ कर कहा कि देखो पहले तुम हमें समझ लो फिर हमारे आका तक पहुंचना। क्या कह रहे हैं? पहले तुम हमें समझ लो, हमें वास्ता बना लो, फिर अली को वास्ता बनाना। पहले हमारी मार्फत हासिल कर लो। यानी मालूम ये हुआ कि अगर कोई वसीले का इनकार करे, चाहे मौलाना रूम ही क्यों न हो, गर्क होने लगते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शम्स तबरेज इन्होंने कहा ता सूरत पैवंद जहां बूद अली बूद, ना नक्शे ज़मी बूद और ज़मा बूद अली बूद, हम आदम हम शीश हम इदरीस हम अय्यूब हम यूसुफ हम यूनुस हम हूद अली बूद। जैसे मैंने कल कहा था कि जब कुछ भी नहीं था तब ये थे, जब तब भी नहीं था तब ये थे। यानी ये उर्दू जबान की मजबूरी है कि कब से थे कब भी नहीं था, कोई वक्त नहीं था तब ये थे। शम्स तबरेज ने कहा ता सूरत पैवंद जहां बूद अली बूद, हम आदम हम शीश हम इदरीस हम अय्यूब हम यूसुफ हम यूनुस हम हूद अली बूद। कहा कोई नबी जब कोई नहीं था, ता सूरत पैवंद जहां बूद अली बूद, जब इस जहान में कुछ भी नहीं था तब अली था। न नक्शे ज़मीन बूद और ज़मा बूद अली बूद, न नक्श थी न जमीन था न आसमान था, उस वक्त अली था। हम आदम हम शीश हम इदरीस हम अय्यूब हम यूसुफ हम यूनुस हम हूद अली बूद। कहा ये आदम नूह हूद इदरीस ये कोई नहीं थे लेकिन अली था। फिर उन्होंने कहा कि ये आदम नूह शीश हूद ये सब असल में कोई था ही नहीं, ये एक अली था जो कभी आदम बन के आया, जो कभी नूह बन के आया, जो कभी इब्राहिम बन के आया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक आदम था जो, एक अली था जो चेहरा बदल बदल के आ रहा था। अब एक हदीस है कि सिद्दीक़ अकबर किसे कहा जाए। अब उलमा ने बयान किया कि इन्ना सिद्दीक़ा अन युशबहुल अंबिया, का सिद्दीक़ वो होगा जो अंबिया ना हो लेकिन अंबिया के जैसा हो, अंबिया के जैसा होगा वही सिद्दीक़ होगा। अब आप देखें कि अंबिया के जैसा कौन है। नबी ने फरमाया मन अरादा इला आदमा फी इल्मिही व इला मूसा फी हैबतिही, जो ये चाहता है कि आदम का इल्म देखे, मूसा की हैबत देखे, इब्राहिम की खुल्लत देखे, ईसा का शिफायाबी जो दस्त है उनका वो देखे, फल यंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, सब के सब अली की तरफ नजर करो। इसलिए कि अगर अली को देख लोगे तो तुम्हें आदम भी नजर आ जाएगा, नूह भी नजर आ जाएगा, ईसा भी नजर आ जाएगा, इब्राहिम भी नजर आ जाएगा, इब्राहिम भी इस्माइल भी नजर आ जाएगा। यानी मालूम ये हुआ कि एक अली थे जो अंबिया के जैसे थे। को देखना चाहते हो अली को देखो, नूह को देखना चाहते हो अली को देखो, इब्राहिम को देखना चाहते हो अली को देखो। अब वो जुमला जो अकाबिर उलमा ने लिखा, बड़े आलिमों ने लिखा, इन्ना सिद्दीक़ा युशबहुल अंबिया, का सिद्दीक़ वो होगा जो अंबिया से मुशाबे हो, सिवाय अली के शुरू ज़मीन पर कोई और नहीं मिलेगा जो अंबिया से मुशाबे हो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये आले मोहम्मद पहले से ही थे और जो आले मोहम्मद को भेजा गया इसलिए भेजा गया ताकि लोगों की हिदायत कर सके।
जनाब ईसा को और जनाब मूसा को भी इसीलिए अल्लाह ने भेजा ताकि वो अपने ज़माने के लोगों की हिदायत कर सके। जनाब ईसा के ज़माने में इब्लीस आया, शैतान का भी जिक्र हो रहा था। इब्लीस आया, उसने आन कर कहा कि या नबी अल्लाह, आप अल्लाह से बातें करते हैं, कलीमुल्लाह हैं, लिहाजा अब जब आप टूर पर जाइएगा तो मेरे लिए अल्लाह से ये पूछ लीजिएगा कि क्या इब्लीस की भी बख्शिश हो सकती है। अल्लाह अरहमुर राहिमीन है, क्या हमें भी माफ़ कर सकता है। अब जनाब मूसा गए और जाने के बाद आप देखें, पहले इब्लीस आसमान पर चला जाता था। जब तक आ हजरत की विलादत नहीं हुई थी आखिरी नबी की, तब तक इब्लीस आसमान पर जाता था, फरिश्तों के पास आता जाता रहता था। लेकिन जब आ हजरत की विलादत हो गई, फिर वहाँ पर जाना उसका बंद हो गया। अब डायरेक्ट तो पूछ नहीं सकता। अब वसीला बनाया जनाब मूसा को। जनाब मूसा गए और उन्होंने पूछा कि पालने वाले इब्लीस ने पूछा है, उसकी तौबा कबूल हो सकती है, हालांकि तू तव्वाबुर रहीम है, तू तौबा कबूल करने वाला है। अल्लाह ने कहा कि हाँ, तौबा कबूल हो जाएगी, इब्लीस का अगर घमंड टूट जाए। अभी भी इब्लीस को घमंड था। कहा कि फिर करना क्या होगा उसे? कहा उससे कह दो कि जाकर आदम को सजदा कर ले। मूसा ने कहा कि आदम तो अब है नहीं, कहा उनकी कब्र पे जाके सजदा कर ले। अगर उनकी कब्र पे जाकर इब्लीस सजदा कर लेगा तो मैं उसे माफ कर दूंगा। अब वो जनाब मूसा पलट कर आए, इब्लीस आया मूसा के पास, आवाज दी, क्या हुआ, आप गए थे, बात हुई? कहा हाँ गए तो थे। अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम आदम को सजदा कर लोगे तुम्हारी खता माफ हो जाएगी। इब्लीस ने कहा आदम तो है नहीं, फिर आदम को सजदा मैं कैसे करूं? तो जनाब मूसा ने कहा कि आदम की कब्र को सजदा करो, लिहाजा तुम्हारी खता माफ हो जाएगी। फिर अगर नहीं करता तो फिर तू जा, फिर तेरा कुछ नहीं हो सकता। यानी इसने कब्र पे सजदा करने से इनकार कर दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि साहब ये कब्रों पे सजदा करते हैं, कब्रों का एहतराम करते हैं, अल्लाह ने मूसा के जरिए से इब्लीस से कहा कब्र पे सजदा कर ले, निजात पा जाएगा। यानी मालूम ये हुआ जो कब्र का एहतराम कर लेता है वो निजात पा जाता है। ये आदम थे कि जिसके बारे में अल्लाह ने कहा कि हमने आदम को नबी बनाकर भेजा। पहला आदि जनाब आदम को बनाकर भेजा गया। लेकिन यही आदम जब करबला से गुजर रहे थे तो जनाब आदम के पाँव में चोट लगी और जनाब आदम के पाँव से खून रसने लगा, खून बहने लगा। जनाब आदम ने कहा पालने वाले ये कैसी ज़मीन है तो जहाँ पर पहली मर्तबा आदम ने खून देखा था अपने जिस्म में, पहली मर्तबा खून देखा। कहा कि पालने वाले ये कैसी ज़मीन है कि जहाँ पर मैं पहुँचा तो मुझे खून निकल आया और मुझे दर्द हुआ। आवाज़ कुदरत आई, आदम ये करबला की ज़मीन है, यहाँ पर जो भी गुजरेगा दर्द सहता हुआ गुजरेगा। मूसा भी दर्द सहते हुए गुजरे। मौला अली सिफ़ीन से जब पलट रहे थे उनको भी कर्ब हुआ और उन्होंने अपने असहाब से बताया कि ये करबला की ज़मीन है। अब जब आदम ने कहा कि यहाँ पर दर्द क्यों हुआ, ये करबला की ज़मीन कैसी ज़मीन है, आवाज़ कुदरत आई, आदम आखिरी नबी का नवासा, वो जिसके नाम से तुम्हें अफजलियत बख्शी गई थी, जिसका नाम तुमने लिया था, हुसैन जो नाम तुमने लिया था, जिसके नाम की वजह से फरिश्तों ने तुम्हें सजदा किया, उसी हुसैन को करबला के मैदान में शहीद कर दिया जाएगा। वो पूरा मसाइब जिब्रील के जरिए से अल्लाह ने बताया। आदम ने दस्ते दुआ बुलंद करके कहा पालने वाले मुझे उनके अज़ादारों में शामिल कर। ये अज़ादार की बड़ी अहमियत है, बड़ी मंजिलत है। इमाम रज़ा अज़ादार थे, अइम्मा अज़ादार थे, अम्बिया अज़ादार थे, अम्बिया ने क्रिया किया है।
नबियों ने गिरिया किया है। हुसैन तो वो हैं कि तय्युरुल फिल हवा, जिनके ऊपर हवाओं में चिड़ियों ने, चरिंदों ने, परिंदों ने गिरिया किया है, जिनकी शहादत के बाद आसमान से खून की बारिश हुई है। इमाम हुसैन वो मजलूम हस्ती है। हाँ दादारो, कल की जो तारीख है 6 मुहर्रम की तारीख है, बड़ी क़यामत की तारीख है, जो तारीख मंसूब है जनाब अली अकबर से। कौन अकबर? हुसैन का कड़ियल जवान अकबर। कौन अकबर? जो हज़रत की शबीह था। जाकिर मसाइब पढ़ रहा था, जब मसाइब पढ़ के वापस आया अपने घर में, हुजरे पर आया, हुजरे में आया, बिस्तर पर गया और सो गया। इतने में ख्वाब में उसने क्या देखा, एक नकाब पोश बीबी आई हुई है और आन के कहा कि तुमने क्या पढ़ दिया? जाकिर बुलंद हुआ, दस्ते अदद जोड़ के कहा कि शहजादी क्या मैंने कुछ गलत पढ़ दिया है? कहा नहीं, आज तुमने अकबर का मसाइब पढ़ा। जब से तुमने अकबर का मसाइब पढ़ा है, कभी मैं शाम में जाकर ज़ैनब को समझाती हूँ, कभी करबला में आके हुसैन को समझाती हूँ। कभी मेरा हुसैन बेहोश हो रहा है, कभी मेरी लाडली ज़ैनब बेहोश हो रही है। ये अकबर का मसाइब है अज़ादारो। एक मर्तबा अकबर अपने बाबा के पास आए, दस्ते अदब जोड़ के कहा कि बाबा जान मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। इमाम हुसैन ने फरमाया, अकबर मैं तुम्हें कैसे मरने की इजाज़त दूँ? जब मैं चाहता था कि अपने नाना की ज़ियारत करूँ, मेरे लाल अकबर मैं तुम्हें देख लिया करता था। अलगरज जनाब अली अकबर को इजाज़त मिली। जनाब अली अकबर घोड़े पर सवार हुए, अभी कुछ दूर चले थे। एक मरतबा इमाम हुसैन ने दस्ते दुआ बुलंद करके कहा कि पालने वाले तू गवाह रहना, मैंने मक्तल में उसे भेजा है जो गुफ्तार में, रफ्तार में तेरे मोहम्मद से मुशाबिह। करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने अकबर को अकबर बनाकर नहीं भेजा, बल्कि मोहम्मद बनाकर भेजा, ताकि मलाइम जान ले कि मोहम्मद की शक्ल के हैं। हो सकता है यही सोचकर अकबर कर रहे थे, लेकिन हाँ ये संग दिल इंसान थे। जैसे ही अकबर घोड़े पर सवार हुए और कुछ दूर आगे बढ़े, आप जानते हैं, मुशाहिदा है कि जब कोई जवान सवारी पे सवार होता है तो सवारी को बड़ी तेजी से चलाता है। अकबर जैसा जवान सवारी पर सवार है, अकबर के घोड़े हवा से बातें कर रहे हैं। एक मर्तबा अकबर ने महसूस किया पीछे वजनी चीज गिरी है। जनाब अली अकबर ने मुड़ कर देखा, सही बाप आवाज दे रहा था, या बुनैया महलन महला, ऐ मेरे लाल अकबर जरा आहिस्ता। अकबर दिल से जमीन पर आए, अपने बाबा के करीब आए, दस्ते अदब जोड़ के कहा, बाबा आपने तो रुखसत कर दिया था ना, फिर मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं मेरे बाबा? इमाम हुसैन ने वो जुमला कहा जो आज भी मकातिल की किताबों में मौजूद है। इमाम ने फरमाया, मेरे लाल अकबर, अगर तुम साहिबे औलाद होते तो ये सवाल न करते। अकबर को इजाजत मिली, अकबर मक्तल में आए, कयामत का जिहाद किया। एक नेज़ा चला, अकबर के कलेजे में लगा। अकबर दीन से जमीन पर आए, आवाज दी, अस्सलाम अलैका, बाबा जान मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। इससे पहले जितने भी शहीद दीन से जमीन पर आए हैं, उन्होंने इमाम हुसैन को मदद के लिए पुकारा है, लेकिन अकबर ने मदद के लिए नहीं पुकारा। आवाज दी, या अबता अलैका मिन्नी सलाम, बाबा जान मेरा दूर से सलाम कबूल कर लीजिए। मैं कहूँगा शहजादे आपने मदद के लिए क्यों नहीं पुकारा? तो अजब नहीं, अकबर आवाज दे कि इससे पहले जब भी मेरा बाबा जाता था, मेरा चचा मौजूद होता था, मैं मौजूद होता था, लेकिन अब मेरा बाबा तन्हा हो गया है। अरे सही बाप है, जवान बेटा है, लिहाजा बाबा मदद नहीं मांग रहा हूँ, आने की जहमत ना कीजिए, दूर से मेरा सलाम। बाबा जान दूर से मेरा सलाम ले लीजिए। ए लीजिए। हुसैन अकबर के करीब आए, अकबर के सर को हुसैन ने अपने जानू पे रखा। अभी अकबर ने गुफ्तगू करना शुरू किया था कि एक मर्तबा अकबर का हाथ
अकबर के सीने पर था। इमाम ने फरमाया मेरे लाल अकबर ये सीने पर हाथ क्यों है? अकबर ने रो के फरमाया हसीन बिन नुमैर ने सीने में बर्छी की अनी मार दी और ये कहता हुआ चला गया मैंने सुना है हुसैन बड़ा साबिर है, आज मालूम हो जाएगा जब जवान बेटे के कलेजे से हुसैन बर्छी की अनी निकालेगा। और जैसे ही ये सुना हुसैन ने दो जानू होकर जमीन करबला पर बैठ गए। अभी जनाब अली असगर का गहवारा भी बरामद होगा, जो दो जुमले जनाब अली असगर के हवाले से भी मैं अर्ज करूंगा, लेकिन जनाब अली अकबर का मसायब सुन ले, क़यामत का मसायब है। हुसैन दो जानू होकर बैठे, एक मर्तबा आस्तीनों को चढ़ाया है और आस्तीनों को चढ़ाने के बाद या अली मदद कह के ज़ख्मे अली अकबर में हाथ डाला। अब जो नेज़े की अनी निकाली है तो नेज़े की अनी के साथ साथ अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया, अकबर का कलेजा भी बाहर आ गया। अकबर ने हिचकी ली, रूह कफ़से उनसरी से परवाज़ कर गई। सही बाप देखता रहा, जवान बेटे की रूह निकल गई। मकातिल के फिक्रे है वज़िया खद्द हुआ खद्दे। हुसैन ने अपना रुखसारा अकबर के रुखसारे पर रख दिया। आवाज दी मेरे लाल अकबर, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, अकबर आंखें खोलो मेरे लाल। हाँ लाला, हुसैन को वो मसायब गुजर गया कि जब इमाम हुसैन आए हैं सईद सज्जाद के पास तो सईद सज्जाद इमाम हुसैन को पहचान न सके, इसलिए कि दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। पहले काली थी, स्याह थी, लेकिन जब सईद सज्जाद के पास आए तो सफ़ेद हो गई। अब इल्म नफ्सियात के जो माहिर हैं वो बताते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा मुसीबत किसी के ऊपर पड़े तो एक लम्हे में उसका बाल काले से सफ़ेद हो सकता है। इमाम हुसैन जब सैयद सज्जाद के पास आए, सैयद सज्जाद पहचान न सके, आवाज दी मन अल्लाह, आने वाले आप कौन है? हुसैन ने मातम करके कहा बागुर बता, सज्जाद तुमने नहीं पहचाना, मैं तेरा बाबा हुसैन हूँ। सैयद सज्जाद ने रो के फरमाया बाबा आपकी रीशे मुबारक तो स्याह थी, सफेद नहीं थी, आपके बाल तो स्याह थे, सफेद नहीं थे, ये सफेद कैसे हो गए मेरे बाबा? अब हुसैन ने फरमाया जैसे ही मैंने अकबर के कलेजे से नेज़े की अनी निकाली मेरे बाल सफेद हो गए। हुसैन ने अपना रुखसारा अकबर के रुखसारे पर रख दिया। आवाज दी मेरे लाल अकबर बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे, अकबर जरा आंखें खोलो। एक मर्तबा हुसैन ने अकबर के लाशे को उठाया है और खैमे की तरफ लेकर चले हैं। बकौल मीर अनीस मंजर ये था, लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफे अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम के बादल से उठा लाए हुसैन, जाबलम शेर को जंगल से उठा लाए हुसैन, दी सदान के अकबर को मैं लाया बानो, छिद गया बर्छी से अकबर का गले जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सईद शोदा के। अकबर के लाशे को लाकर इमाम हुसैन ने खैमे में रख दिया। तमाम बीवियों ने मातम करना शुरू किया। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब आई है उम्मे लैला के खैमे में, आवाज दी उम्मे लैला चलो तुम्हारा अकबर मख्तल से आ गया है। जैसे ही उम्मे लैला ने सुना खैमे के गिर्द तमाया करने लगी, खैमे के अंदर चक्कर काटने लगी। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने कहा उम्मे लैला क्या कर रही हो? उम्मे लैला ने मातम करके कहा जैसे ही आपने खबर शहादत दी है मेरी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता, शहजादी मुझे खैमे का रास्ता बता। हाँ अभी कहवारे जनाबे अली असगर भी बरामद होगा, मैं यहीं पर मजलिस खत्म कर देता, लेकिन दो जुमले और सुन लीजिए। असगर वो शहीद है जिसकी शहादत के वक्त इमाम हुसैन ने उसे शहीद होते हुए देखा। अब्बास के बाजू कलम हुए, इमाम हुसैन ने नहीं देखा बाजू कैसे कलम हुए। जनाब कासिम का लाशा पैमान हो गया, इमाम हुसैन ने नहीं देखा।
देखा, लाशा कैसे पामाल हुआ है। अकबर के कलेजे में नेज़े की अनी लगी, इमाम हुसैन ने नहीं देखा नेज़े की अनी कैसे लगी है, लेकिन हाँ असगर वाहिद वो शहीद है जिसकी शहादत के वक्त इमाम हुसैन ने तीर चलते हुए भी देखा, तीर लगते हुए भी देखा। जैसे ही असगर के गले पर तीर लगा है, एक मर्तबा इमाम हुसैन ने हाथों को बुलंद किया, इतना खून बहा था, 3 दिन का भूखा प्यासा था, चंद कतरा खून हाथों में आया। हुसैन ने चाहा आसमान की तरफ फेंक दे, आसमान से निदा आई, ऐ हुसैन अगर इस खूने नाहक का एक भी कतरा आसमान पर आया कयामत तक बारिश नहीं होगी। हुसैन ने कहा जमीन चाहा जमीन पर फेंक दे, जमीन से आवाज आई अगर एक भी कतरा जमीन पर आएगा कयामत तक एक दाना न उगेगा। इमाम हुसैन ने पूरी मौनाता पर, पूरी इंसानियत पर इस तरह से एहसान किया कि आज पूरी दुनिया खा रही है। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने कहा इनकार